નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશુતોષ વિદ્યાલય ઓનલાઈન ક્લાસમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની અંદર આપણે આગળ ચેપ્ટર નંબર 3 ત્યાં સુધી આપણે જોયું. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5ની વાત કરવાની છે. બરાબર. ચેપ્ટર નંબર 5 છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ. બરાબર. તો હવે મિત્રો સ્વરાજ્ય કી નીંવ એમાં આપણે નીંવ એટલે શું? પહેલાં તો સ્વરાજ્ય એટલે તો પોતાનું રાજ્ય. બરાબર. સ્વરાજ્ય એટલે શું થાય? પોતાનું રાજ્ય. કી એટલે ની. બરાબર. નીંવ, હવે એનું ખાસ જોવાનું છે. નીંવ એટલે કે પાયો નાખવો. બરાબર. શું? પાયો. નીંવ એટલે પાયો. બરાબર. પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખો, એવું કંઈક આપણા પાઠનું આ ટાઇટલ એટલે કે બરાબર નામ છે. તો હવે આપણે એમાં જોઈએ પહેલાં લેખક પરિચય. લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર. બરાબર. કોણ એના લેખક છે? વિષ્ણુ प्रभाकर. જોઈએ આગળ. હવે विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था. बराबर. एनो जन्म क्या थयो तो के मुजफ्फर जिल्लाना मीरनपुर नामना गाम में थयो तो. बराबर. आगळ जोईए. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. बराबर. एने क्या अभ्यास कर्यो तो के एने प्रारंभिक शिक्षण, बराबर, एने शुरुआतનું प्राथमिक शिक्षण પોતાના ગામમાં જેણે લીધું હતું. બરાબર. અને ઉચ્ચ શિક્ષણ એટલે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ એ ક્યાં એને શિક્ષણ લીધું હતું? બરાબર. એ તો કે એના हिरासर में લીધું હતું. बराबर. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे. बराबर. કેટલાય વર્ષોથી એ પંજાબ સરકાર, જે પંજાબની સરકાર છે એની સેવા કરવા માટે, બરાબર, 1974થી દિલ્હીમાં આવી ગયા અને એ ત્યારથી દિલ્હીમાં રહીને પોતાનો પૂરો સમય એને ત્યાં વિતાવ્યો. બરાબર. સેવામાં એને લગાવેલો છે. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. बराबर. एने कया कया साहित्य लख्या है तो के कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखांकित चित्र एवं एने જે સાહિત્ય છે એ પણ લખેલા છે. आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, बराबर, ये શું છે તો કે ઉપન્યાસ છે. संघर्ष के बाद, बराबर, ये શું છે? संघर्ष के बाद कहानी संग्रह છે. बराबर. नवप्रभात, डॉक्टर, એ ડૉક્ટર છે એનું, બરાબર, એ કહાની, એ શું છે? નાટક છે. प्रकाश और परछाई, बराबर, 12 एकांकी, अशोक छे एकांकी संग्रह है. बराबर. जाने अनजाने, स्मरण और रेखा चित्र है. बराबर. आवारा मसीहा, ये से आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है. बराबर. एना जीवननी जे कांई घटनाओं है ये आमां वर्णववामां आवेली है. आगळ जोईए. विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश में प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है. बराबर. विष्णु प्रभाकर ने जे रचनाओं है, जे कृतिओ है, बराबर, जे एणे रचनाओं करेली है एमां पहलेथी ज पोताना देश प्रत्येनी राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एनी भावनाओं एमां रजू करवामां आवेली છે. અને જે સમાજ સુધારા છે એ પણ એમાં વધારે પડતા છે. બરાબર. આગળ જોઈએ. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया.
બરાબર. એને સ્વતંત્રતા પછી સ્વતંત્રતા મળી ગઈ પછી એને આકાશવાણી, બરાબર, રેડિયોમાં જે સ્ટેશનો આવે છે જે, બરાબર, એ દિલ્હીમાં, બરાબર, આકાશવાણી કેન્દ્ર દિલ્હીમાં એણે નાટક નિર્દેશક કે પદ પર કામ કર્યા હતા. હવે તમે રેડિયો અત્યારે તો બહુ ઓછા જણા વાપરતા હોય છે, બરાબર, પણ રેડિયોની અંદર તમે સાંભળતા હોય, બરાબર, તો એમાં રાત્રિના સમયે 8 વાગ્યા પછી કે એમ સ્ટેશનોમાં વાર્તાલાપો આવતા હોય છે, બરાબર. હું નાનો હતો ને ત્યારે રેડિયો બહુ મારા પપ્પા સાથે સાંભળતો, તો એમાં સ્ટેશનો આવે, એમાં વાર્તાઓ સાંજે આવતી હોય છે, બરાબર. તો એમાં એ દિલ્હીમાં એમાં પણ કામ કરેલું છે, બરાબર. बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया, बराबर. પછી સ્વતંત્રતા મળી ગઈ, બરાબર, પછી એણે પોતાના જીવનને, બરાબર, પોતાનું સાધન બનાવી લીધું. આપકા સમસ્ત સાહિત્ય માનવીય અનુભૂતિઓ से जुड़ा हुआ है, બરાબર. એનું પૂરેપૂરું જીવન, બરાબર, પૂરેપૂરું એનું સાહિત્ય એ માનવીઓ સાથે જોડાયેલું છે, બરાબર. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है. એની કાંઈ જે રચનાઓ છે, બરાબર, જે કાંઈ એની લખેલી ઘટનાઓ છે, બરાબર, એમાં રોચકતા, કંઈક નવીનતા અને સંવેદનશીલતા, બરાબર, કંઈક આપણને એ જોઈએ, વાંચીએ, સમજીએ એટલે આપણને સંવેદન થાય. સંવેદન એટલે શું? એટલે કે આપણને કાંઈક એની અસર થાય, બરાબર, આપણને એ થોડુંક આમ લાગણી આપણને અનુભવાય એના પ્રત્યે, બરાબર. અને એ બધી રીતે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, એટલે બધી રીતે પ્રસારેલું છે. ભાષા સહજ વ સરળ છે, બરાબર, એમાં ભાષાઓ પણ સરળ છે, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया, बराबर. આપણે જે અહીંયા આપેલી જે એકાંકી પાઠ છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ, એમાં પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ 1857માં જે થયો હતો, બરાબર. પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ક્યારે થયો હતો? 1857, બરાબર. એમાં લક્ષ્મીબાઈ ઘણા બધા એમાં જોડાણા હતા, તાત્યા ટોપે ને એ બધા, બરાબર. એમાં જે લક્ષ્મીબાઈ છે એમાં એનો ત્યાગ અને સંઘર્ષ, જેણે સંઘર્ષ કર્યો છે, બરાબર, એનું વર્ણન આમાં કરવામાં આવેલું છે. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बराबर. પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખવામાં સ્ત્રીઓનો પણ ઘણો ફાળો છે, એનું પણ ઘણું મહત્વ છે, બરાબર. પ્રસ્તુત એકાંકી પાત્ર स्वराज्य की नींव के पत्थर है. જે આપણે અહીંયા એકાંકી પાઠ આપવામાં આવેલું છે, બરાબર, એમાં પોતાના રાજ્યનો પાયો નાખવાનો, બરાબર, એમાં પણ એ સ્ત્રીઓનો મોટા ભાગનો ભાગ છે. जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. શું કીધું છે? તો કે जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा, बराबर, જેનો ત્યાગ કર્યો છે એ લોકોએ, બરાબર, એને પરિશ્રમ કર્યો છે, એનો તપસ્યા એટલે કે એની પાછળ ઘણી બધી મહેનત કરી છે, બલિદાન આપ્યા છે, બરાબર. ભલે સ્વરાજ્ય કી પ્રાપ્ત નહીં હોય, બરાબર, એના દ્વારા એને ભલે એને સ્વરાજ્ય, પોતાનું રાજ્ય ન મળ્યું, બરાબર, પણ છતાં પણ એ પોતાના રાજ્યની માટે, બરાબર, એ પોતાનો પાયો નાખવા માટે તત્પર, બરાબર, મક્કમ રહ્યા. देश प्रेम અને मानव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं, बराबर. देश प्रेम છે, દેશની પ્રત્યે જે લાગણી છે એ લોકોમાં લાવવા માટે, બરાબર, નવ જાગરણ એટલે કે
પોતાની એમાં જે કંઈ લાગણી છે દેશપ્રેમની એ લોકોમાં લાવવા માટે, એ ભાવનાઓને બહાર લાવવા માટે, લોકોમાં લાવવા માટે એ પણ હંમેશા મહેનત કરતા રહ્યા. બરાબર. આગળ હવે આપણે પાઠ જોઈએ. એમાં પાત્ર આપેલા છે આપણને. કોણ છે તો કે લક્ષ્મીબાઈ પહેલાં તો, જે આપણું પાત્ર મેન છે. બરાબર. બીજું છે જુહી અને મુંદર, ત્રીજું. આ બંને શું છે તો કે આ લક્ષ્મીબાઈ છે એની, બરાબર, એની શું છે સખી એટલે કે બહેનપણી. બરાબર. આ બંનેની શું છે બહેનપણી છે. બરાબર. ચોથું છે રઘુનાથ રાવ અને તાત્યા ટોપે. એ બંને શું છે તો કે એ છે સેનાપતિ છે. બરાબર. હવે છે સેના નાયક. બરાબર. એક સેના નાયક એ બીજો પણ છે. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. बराबर. रंगमंच जे नाटक करवा माटेનું જે સ્ટેજ છે એને શું કહેવાય રંગમંચ. બરાબર. એના ઉપર યુદ્ધ ભૂમિનું દ્રશ્ય ઊભું કરવામાં આવે છે, ખડું કરવામાં આવે છે. બરાબર. કેપ કહી પાસ ही लगा हुआ है. બરાબર. જે કેપ એટલે કે જે તંબુ છે એ ત્યાં પાછે જ લગાવેલો છે. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. बराबर. महारानी लक्ष्मीबाई છે એનો तंबूનો एक भाग છે એ દેખાય છે. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. बराबर. पर्दो खुले છે એટલે મહારાણી જે લક્ષ્મીબાઈ છે એ એની સખી એટલે કે શું બહેનપણી, બરાબર, એની સાથે એ આવે છે. बराबर. दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है. बराबर. બંને લાલ કુર્તી છે એવા વેશભૂષામાં એ આવે છે, સૈનિકોના વેશભૂષામાં. બરાબર. હવે લક્ષ્મીબાઈ બોલે છે મેરે देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है. બરાબર. કે મારે જોતા જોતા એ કે શું થઈ ગયું એ કે જૂહી, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है. બરાબર. झांसी, કાલપી અને ગ્વાલિયર જે છે, બરાબર, એ ત્રણેય જે સ્થળ છે એ કે ક્યાં રહી ગયું પરંતુ એ મંજિલ એટલે કે એ આપણું મંજિલ છે. કે પાસ આકર ભી હર બાર દૂર ચલી જાતી હૈ. બરાબર. જે અહીંયા એક ઝાંસી છે, કાલપી છે અને ગ્વાલિયર એને જીતવાની વાત છે. બરાબર. એ કે પાસ આકર ભી बार बार दूर चली जाती है. बराबर. हर बार એ કે દૂર ચલી જતી એ કે પાંચ આવે છે, જીતવાની તૈયારી હોય છે, છતાં પણ આપણે એ જીતી શકતા નથી. બરાબર. સ્વરાજ્ય કો આતે હુએ દેખતી હું. બરાબર. પોતાના રાજ્યને પોતે જીતી લે છે એવું એ જોવે છે, પરંતુ દૂસરે ही क्षण मार्ग में ही हिमालय अड़ आता है. बराबर. પરંતુ બીજી જ ક્ષણે, બરાબર, એક મોટો હિમાલય પહાડ એટલે કે મોટી એવી મુશ્કેલી, અહીંયા મુશ્કેલી આવે છે એવી મોટી, એવું એને દેખાય છે. ઉસે પાસ કરતી હું તો મહાસાગર કી ડરાવની લહેરે થપેડે મારને લગતી હૈ. બરાબર. શું કીધું છે તો કે એ જે પર્વત આડો આવે છે, હિમાલય પર્વત, એવડી મોટી મુશ્કેલીઓ આડી આવે છે, એને પાર કરું છું તો મહાસાગર કી ડરાવની લહેરે થપેડે મારને લગતી. જે મહાસાગર છે એની ડરાવની, જે ડરાવે એવી લહેરો છે એ થપેડે મારને લગતી હૈ. બરાબર. જે એ પણ એ ડરાવે છે. ઉનસે જૂઝતી હું તો નાવિક સો જાતે. બરાબર. એનો સામનો કરું છું
उससे जूझती हूँ, बराबर, एनो सामनो करूँ छूँ तो नाविक सो जाते हैं। जे नाविक नाव जे होड़ी चलाववाळा छे ए सूई जाय छे एवुं कहे छे। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो, बराबर, जूही ने कहे छे कि जूही त्यां जो, क्षितिज पर जो, कैसी लपट पाती हुई लपेटे उठ रही है, बराबर, कि केवी के लपट पाती हुई लपेटे उठ रही है, केवी के वो लहरें उठी है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। आखू आकाश पूरेपूरू घटाओथी सवाई गेलू है। प्रलय की भूमिका है, बराबर। प्रलय एटले शुं थाय? आपणे भूकंप एनी ए भूमिका है, बराबर। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है, बराबर। पण जे राव साहब है ये रक्तमंडलनी छायानी अंदर ए शुं छे? ऐशो आराम में मशगूल है, एटले आराम में मशगूल है, बराबर। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है, बराबर। आवेश एटले भान आवी जता ए सहसा मौन हो जाती है, बराबर। अचानक ए मौन एटले के मूंगी थी जाए छे। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, बराबर। जूही के काई कहवा माटे ए जाए छे, बराबर, कहवा लागे छे, लगती है कि महारानी फिर बोल उठती है, बराबर। जूही काई कहवा जाए छे, क्या लक्ष्मीबाई महारानी छे ए पाछा कहवा लागे छे। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। जूही, बराबर, मैं प्रतिज्ञा लीधी थी कि अपनी झांसी, पोतानी झांसी, मारी झांसी जे राज्य से ई के कोईने दस नहीं, कोईना हाथमां ए आवा दस नहीं, पण ए हाथमांथी निकली गई है, बराबर। सहसा तीव्र होकर, बराबर, थोड़ुं तीव्र झड़पथी कहीने, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, बराबर। ना ना है कि झांसी हाथ थी निकली नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, बराबर। हूँ मारी झांसी छे, राज्य से ये दस नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। कि हूँ एकली छूँ, पण एकली छूँ एमां शुं, हूँ पण मारी झांसी तो लई रसज, बराबर। जूही कहे छे, कौन कहता है आप अकेली है? कौन कहे छे तमे एकला छो, बराबर। महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी, बराबर। तमे गीता पढ़ो छो, जे गीता छे, बराबर, ए तमे वाँचो छो, छतां पण आ तमारामां निराशा एटले के हताशा जोवा मळे छे, ए केवी रीते? लक्ष्मीबाई कहे छे, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, बराबर, कि हूँ निराश नहीं, पण तू जाने छो कि झांसी मैं के लेकर रही, कि मैं लईने रहीश, पण तू शू जाने छो कि ते दिवसे बाबा गंगाधर छे दास छे एणे मने शू कीधुं तू, बराबर, कि हूँ के निराश नहीं, पण ते दिवसे बाबा गंगादास छे एणे के शू कीधुं तू खबर छे? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, बराबर। आगळ कहे छे कि जब तक हमारी समाज में छुआछूत और उच्च नीच, बराबर, ज्यां सुधी आपणा समाजमां, बराबर, आपणा समाजमां उच्च नीचना भेदभाव, बराबर, ई नो मटी जाए ત્યાં સુધી, અને જે વિલાસ પ્રિયતા, જે કાંઈ મદિરાપાન છે, જે કાંઈ ખરાબ વ્યસનો છે, બરાબર, એ છૂટી ન જાય ત્યાં સુધી માણસો જે જનસેવક છે, બરાબર, એવું બની શકાય નહીં, બરાબર।
तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। बराबर, ત્યાં સુધી આપણને જે સ્વરાજ્ય છે, આપણું રાજ્ય છે, એ મળી શકે નહીં। બરાબર, આગળ જોઈએ, वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। बराबर, એ કેવી રીતે મળે તો કે એ એવી રીતે મળી શકે કે સેવા કરવાની, બરાબર, તપસ્યા, એના માટે કાર્ય કરવા પડે, બરાબર, અને બલિદાન આપવું પડે, એનાથી આપણને એ સ્વરાજ્ય મળી શકે છે। બરાબર, આગળ જોઈએ, જુહી કહે છે, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है और स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। बराबर, કે પણ મહારાણી એણે તો કહ્યું હતું કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ સે ભટકર, બરાબર, સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ જે મળે છે એનાથી ઊંચું स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। बराबर, पण स्वराज्य एनाथी वधारे स्वराज्यनी स्थापना करवानुं वधारे अघरू छे। बराबर, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। बराबर, पोताना राज्यनो पायो नाखवानुं, पत्थर नाखवानुं, बराबर, शुरुआत करवानुं पत्थर बनना है, पत्थर जेवुं बनवानुं छे। सफलता और सफलता के देव हाथ में है। बराबर, सफलता ये देवना हाथ में छे, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। बराबर, पण जे बराबर पोताना राज्यनो पायो स्थापवानो एनाथी आपणने के कोण रोकी शके, वह हमारा अधिकार है। बराबर, ये आपणो अधिकार छे, પોતાનું રાજ્ય સ્થાપવું એ આપણો અધિકાર છે। આગળ લક્ષ્મીબાઈ કહે છે, મુસ્કરા કર, બરાબર, થોડું હસી લે, શાબાશ મેરી કર્નલ, કે શાબાશ, બરાબર, મારી કર્નલ એટલે કે જે સખી છે, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। बराबर, તમારા બધા લોકોથી મને આ જ આશા હતી, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियों बनने जा रही है। बराबर, જે સ્વરાજ્ય છે એનો પાયો નાખવાનો છે। બરાબર, એવી સ્ત્રીઓ, તમારી જેવી સ્ત્રીઓ છે એ બને છે। वो निश्चय ही महान होगा। बराबर, એ નિશ્ચય જ, એ નિર્ણય જ એ મહાન થશે। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, अवश्य है, कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। बराबर, मने ये बातनी चिंता नहीं कि परंतु वह मेरे जीवन काल में आता है। बराबर, मारा जीवननी अंदर, बराबर, ये आवे छे। बराबर, के नहीं आवतुं ए हूँ जानती नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, अवश्य है, कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। बराबर, पर मने ए वातनुं दुख छे कि आपणी आगळ शक्ति छे, बळ छे, बराबर, छतां पण आपणे निर्बळ, बराबर, रहीने आपणे रहीए छीए। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। बराबर, जे तात्या टोपे छे, बराबर, एने जेवा एनी पासे शुं छे, सेनापतिओ छे, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। बराबर, छतां पण आपणी जे सेना छे एमां अनुशासन नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है। बराबर, जे किलो है ग्वालियरनो ए पण एनी पासे छे। बराबर, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, छतां पण आपणे कांई करी शकता नहीं, एवुं कहे छे। बराबर, जानती हो क्यों? बराबर, जाणो छो तू के शा माटे? जूही कहे छे, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। बराबर, हाँ महारानी के हूँ जाणु छूँ पण आपणे एमां डूबी गया छीए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। बराबर, जे मुंदर छे ए त्यां प्रवेश करे छे। बराबर, मुंदर बोले छे, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? बराबर, कोण कहे छे कि आपणे तेमां डूबी गया छीए?
विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या, बराबर। एमां कोण डूबी गयुं छे, बराबर, तो कि एमां राव साहब अने बांदा के नवाब, बराबर, जे बांदा छे एनो नवाब, एना राजा सेनापति तात्या छे ए डूबी गया छे। जूही कहे छे सहसा, नहीं मुंदर सेनापति नहीं, बराबर, ना मुंदर ही के सेनापति नहीं। मुंदर बोले छे, मुस्कुराती है, बराबर, थोड़ू हचे छे। ओह समझती हूँ तुम तो उनका पक्ष लोगी, बराबर, कि तू तो कि एनु पक्ष ले शीके। जूही कहे छे दृढ़ स्वर में, बराबर, पोताना मक्कम स्वरे कहे छे, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना नहीं जा सकता, बराबर। हूँ एनो पक्ष लेवा नथी मागती के, पण जे हाचुं छे, तथ्य हाचुं छे जे ई के छुपावा, बराबर, संताड़वा मागती नथी। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जे तात्या टोपे छे, बराबर, एने ए तन मन, पोताना मन शरीरनो ए स्वामी एटले जे माने छे। मुंदर बोले छे, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, बराबर, शू तू के एने के स्वामी माने छो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी। कि हाँ कि हूँ एने मारा स्वामी मानूँ छूँ अने कायम एने स्वामी मानती रहीश। लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, बराबर, पण एनाथी वधारे पण कोने ए माने छे? महाराणी, बराबर, जे लक्ष्मीबाई छे एने वधारे माने छे। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, बराबर। महारानी थी पण वधारे कोने? तो के पोताना देशने, बराबर, ये माने छे। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, बराबर, देशनी माटे जे सरदार छे एने पण हूँ ठुकरावी दो, बराबर, ठुकरा छूकी हो, बराबर, अने ए ठुकरा छूकी पण ठुकरावू एटले के एने दूर करी देवू, बराबर, एनो सामनो करवो, बराबर। मुंदर बोले छे शक पका कर, बराबर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं, बराबर। कि मारो कहेवानो एवो अर्थ नहीं कि तू नाराज थी जा, मारो ये मतलब है कि मैं केवल इतनी ही कहना चाहता हूँ, हूँ एटलुं ज कहेवा मागू छूँ कि तू पोतानो स्वामी माने छो एने, बराबर, तो एने तू रोकी नहीं सकती, बराबर, जे बराबर एनो स्वामी तू माने छो एने, बराबर, पोतानो स्वामी माने छो, तू एने रोकी नहीं सकती। लक्ष्मीबाई कहे छे जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, बराबर, लक्ष्मीबाई कहे छे कि जूहीए एने रोक्यो छे, बराबर, मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार किया था, बराबर। જ્યારે એને રાવ સાહેબ છે, બરાબર, એ બોલાવા આવ્યા था ત્યારે એ તાત્યા છે એને નાચને કે लिए बुलाने को आए थे, बराबर, नाचवा माटे एने बोलावामां આવ્યા था, तो इसने उसको बुरी तरह दुत्कार किया, बराबर, खराब रीते एने बराबर दुत्कार किया એટલે કે એનો बराबर શું કહેવાય કે आविष्कार કર્યો, बराबर। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर, पोताना राज्यनी माटे हूँ नाची सकूँ छूँ, बराबर, नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ, बराबर। परंतु विलासिता एमां डूबवा माटे अपनी कला है, एनी कारीगरी है, एने ए कोईनी फांसी, बराबर, ए बनवा मागती नथी।
जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, बराबर। એવું કરવા કોઈ ઈચ્છે, બરાબર, એને હું શું ઠોકર, બરાબર, એને હું મારું છું, બરાબર। લક્ષ્મીભાઈ બોલે છે दीर्घ निश्वास लेकर, बराबर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, बराबर, तो ठोकर तो न मार सका, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, बराबर, आज दर्द हमें नड़े छे, बराबर। अगर ठोकर मारकर हम उनकी बदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी, बराबर। कि આપણે એને ઠોકર મારીને જ એને દૂર કરી દઈએ તો એમાં પછી કાંઈ બીજું રહે જ નહીં, એમાં કાંઈ બીજું કરવાનું ના રહે। જૂહી કહે છે भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, बराबर, कि हूँ जे औरों, बराबर, औरत जे महिलाओं है एनी बात जानती नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, बराबर, कि मने आज्ञा आपो हूँ एने ठोकर मारवा तैयार छूँ। मुंदर बोले छे और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे, बराबर। जो मुंदर है ये पण कहे छे कि मैं हूँ पण तैयार छूँ, बराबर, चलो हम सब कर मिलकर उनकी नींद हराम कर दे, बराबर। आपने बधा મળીએ અને એની નીંદ ઊંઘ હરામ કરી દઈએ, એટલે નીંદ હરામ કરના એટલે કે એની જે રાજ્ય માટે છે, बराबर, એ હરામ કરી દેવાનું, બરાબર, જે એશો આરામ કરે છે, बराबर, એ મિટાવી દેવાનું, बराबर। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, बराबर, कि नहीं मुंदर कि આપણે એની नींद છે એ હરામ કરી શકીએ नहीं। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है, बराबर। दुश्मन છે એ જ એને દુશ્મનની જ્યારે ઠોકર લાગશે ત્યારે જ એને નીંદમાંથી ઊંઘમાંથી જગાડી શકશે, બરાબર। આગળ જોઈએ, જૂહી બોલે છે दुश्मन की ठोकर ये आप क्या कह रही है, बराबर, कि दुश्मननी ठोकर ये आप तमे शू कही रह्या छो। लक्ष्मीबाई हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, बराबर। जे दोस्त मित्रनी ठोकर छे ए अविश्वास, एमां विश्वास रहतो नथी, पण जे दुश्मन छे एने ठोकर लागे, बराबर, तो ये चौड़ा कर देती है, चौंकावी दे छे। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरों को किस दृष्टि से देखते हैं, बराबर, शू तू नहीं जानती कि આપણે બધા એકબીજાને કેવી દૃષ્ટિએથી જોઈએ છીએ। क्या ऐसी स्थिति मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटना और भी गहरा नहीं उठेगी, बराबर। શું કે એવી ઘટનાઓ સ્થિતિ में આવી ઘટનાઓ કંઈક કહેવા માટે શંકાઓ, બરાબર, નહીં બને કે। मुंदर कहे छे भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी, बराबर। भाई साहब, मैम साहब, बराबर, आप साचू कहो छो कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी, बराबर। शंकाओं छे ये अविश्वास ऊभो कर छे, अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी, बराबर। अविश्वास है ने उत्पन्न करवा माटे, निराशा है ए दूर करवा माटे पायलनो झंकार अवाज अने झनक उठेगी, बराबर। ए पायलनो अवाज है ए ज एने असर करशे। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा, बराबर। श्रीखंड अने लड्डू एटले लाडवा एना ऊपर जान देने वाले एटले एना ऊपर मरवा वाला ब्राह्मणों आशीर्वाद का स्वर और अने तेज हो उठेगा, बराबर। प्रसन्न थई उठशे, सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, बराबर। अचानक तोपोनो अवाज, दूरथी तोपोनो अवाज आवे छे। लक्ष्मीबाई और जूही तू अगर तात्या को खोज
सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। बराबर, लक्ष्मीबाई શું કહે છે કે જુહી તું જો અત્યારે તાત્યા ટોપેને શોધી શકે તો તરત અહીંયા એને બરાબર આને કે લીએ કહે। બરાબર, તરત અહીંયા એને આવવા માટે કે। બરાબર, આગળ જોઈએ। जूही कहे छे खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। केम के हूँ न गोती शकूँ, तमारी आज्ञा जो होय तो हूँ पाताळमांथी पण एने गोतीने लावी शकूँ छूं। जाने को मूंडती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते। बराबर, જ્યારે જુહી છે એ જવા માટે આમ જાય છે, પાછળ ફરે છે, ત્યાં જ કોણ આવે છે? રઘુનાથ રાવ। બરાબર, ઝડપથી એ પ્રવેશ કરે છે। રઘુનાથ રાવ કહે છે મહારાણી આપને સુના। બરાબર, મહારાણી તમે સાંભળ્યું છે? લક્ષ્મીબાઈ કહે છે ક્યાં રઘુનાથ, શું રઘુનાથ? रघुनाथ कहे छे महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशाव की सेना को हरा दिया। शू कीधु रघुनाथे कि महारानी जनरल रोज की सेना जे जनरल बराबर एनी जे सेना है एने मुरारना जे पेशवा है राजा है एने हरावी दीधी है। जूही कहे छे काप कर। बराबर, क्रोध में आवीने बराबर अचानक ध्रुजी ऊभी थईने क्या पेशवा की सेना हार गई? बराबर, क्या पेशवा की सेना हार गई? शू पेशवानी सेना हारी गई है? लक्ष्मीबाई कहे छे पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ। बराबर, लक्ष्मीबाई कहे छे कि पेशवानी सेना हारी गई ये सारू ज थयुं छे। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। बराबर, हवे के पेशवानी आँख खुलशे। बराबर, हवे एने खबर पड़से। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। बराबर, लक्ष्मीबाई कहे छे कि रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। बराबर, हथियार बिथियार लईने के तैयार थी जाओ लड़वा। बराबर, कि अपनी सेना को आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। बराबर, रोज है ग्वालियरनो जे किल्लो है ये के लई शकशे नहीं। रघुनाथ कहे छे मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। बराबर, हूँ जाणुं छूं कि एक कोई दिवस क्यारेय पण लई शकशे नहीं। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। बराबर, युद्ध माटे बराबर ये सेना ने हूँ हमणां ज तैयार करूँ छूं। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। बराबर, मात्र तमने सूचना देवा माटे तमने कहेवा माटे ज आव्यो तो जाता है। बराबर, पछी ए त्यांथी जाय छे। लक्ष्मीबाई बोले छे और जूही तुम भी जाओ। बराबर, अने जूही तू पण जा सस्ता बाहर देख कर। बराबर, थोड़ू एवं बाहर जोईने लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे। बराबर, उभा रहो के शायद कदाच सेनापति तात्या छे ए अहींया ज आवी रह्या छे। आगळ जोईए जूही बाहर देखकर थोड़ू बाहर जोईने जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है। कि हाँ ये के सरदार तात्या टोपेज छे। सरदार तात्या का प्रवेश पछी सरदार तात्या टोपे छे ये प्रवेश करे छे आवे छे। लक्ष्मीबाई बोले छे कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े? बराबर, के कोई के सरदार तात्या आज तमे अहींया केम भूला पड़ी गया के? बराबर, आगळ जोईए तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। बराबर, तात्या टोपे छे लक्ष्मीबाई ने कहे छे कि भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, कोई पण माटे हूँ सरदार छूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। बराबर, पण तमारा माटे तो हूँ शू छूँ? सेवक ज छूँ। बराबर, लक्ष्मीबाई बोले छे व्यंग्य से। बराबर, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? बराबर, કે એટલા બધા મોટા સેનાપતિ થઈને એક નારી સ્ત્રીની સામે ઝૂકતા એટલે કે નમતા તમને એ કે લજ્જા એટલે કે શરમ નથી આવતી? ખેર
छोड़ो इस बात को, बराबर, जवा दो आ बात नहीं के, यह तुम्हारी विनम्रता है, बराबर, तुम्हारी विनम्रता है आ के, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है, बराबर, पण आ तोपोनी जे अवाज है, बराबर, ये केवी आवी रही है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, बराबर, क्यों एवो तहेवार उत्सव मनावे छे, शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, बराबर, कदाच चाटुकारों में, बराबर, त्या राज्यों में, बराबर, वेचवानुं पोतानी जागीर मिलकत वेचवानुं हजी पण पूरुं थयुं नथी। तात्या कहे छे, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, बराबर, कि भाई मैडम साहब, बराबर, भाई साहब एटले के आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, तमने मने शर्मावानो, बराबर, लज्जित करना एटले के शर्मावू, बराबर, ये पूरो अधिकार तमने छे, हम ऐसी योग्य है, बराबर, हूँ एने ज योग्य छूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही, बराबर, पण जे कांई थाय छे ए तमे जाणो ज छो, बराबर। लक्ष्मीबाई कहे छे, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है, बराबर। लक्ष्मीबाई शू कहे छे तो कि शायद कदाच ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपो चल रही है, बराबर। जो ब्रह्मभोज है एना त्या आ तोप छे ये चाली रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, बराबर। जे श्रीखंड है अने लड्डू है लाडवाओ है एना माटे घी अने शक्कर साकरनी एक कमी बराबर ओछું तो नहीं पड्યું नहीं पड़ी, बराबर, एटले कमी तो नहीं पड़ी होय ने। जूही के छे, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए, बराबर, के सरकार आ वक्ते एने माफ़ करी दो। तात्या के छे व्यग्र होकर, भाई साहब आप यू कब तक फटकारती रहेगी, बराबर, तमे के क्या सुधी मने आवो ठपको आपता रहेशो ई के, बराबर। लक्ष्मीबाई कहे छे, तू कहती है अच्छा लेकिन, बराबर, त्यां अटकी जाय छे ने मुंदर छे ए प्रवेश करे छे के तू तमे कहो छो ए सासू छे सारू छे, बराबर, लेकिन एवुं एटલું કહે છે ત્યાં મુંદર આવે છે અને ત્યાં અટકી જાય છે। પછી મુંદર બોલે છે, बराबर, मुंदर, सरकार सेना तैयार है, बराबर, सरकार के सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहे छे, तो मैं भी तैयार हूँ, बराबर, तो हूँ पण तैयार छू। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया, बराबर, कि मने, बराबर, ताराथी खूब ज आशा थी पण आ तमारा रहवाथी शू थई गयुं के। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है, बराबर, जूही कहे छे कि ये स्वामी भक्त है, बराबर। लक्ष्मीबाई आगळ कहे छे, लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, बराबर, पण आजे आपने शेनी जरूर है, देशभक्त, बराबर, जेने देश प्रत्ये प्रेम होय लागणी होय, बराबर, एनी जरूर है। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बराबर, जवा दो, हजी पण कांई बिगड़्યું નથી, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, हजी पण घणुं बधुं करी शकीए छीए आपणे, बराबर। तात्या बोले छे, इसलिए तो आया हूँ, भाई साहब आपको कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, बराबर। तात्या कहे छे कि ए माटे तो हूँ अहींया आव्यो छुं, भाई साहब के आप जो कहेगी वही करूँगा, जो आ तमे कहे छो ए ज हूँ करीश, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, जो तमे योजनाओं बनावशो, जे कांई कहेशो एनी उपर जे कांई निर्णयों करशो, बराबर, एनी उपर ज हूँ चालीश, ए प्रमाणे ज हूँ करीश। लक्ष्मीबाई कहे छे, तो जाओ तलवार संभालो, बराबर, तो कि जाओ ने तलवार संभालो, बराबर, तलवार ने संभालो, नपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, बराबर। जे नपुर है एने झंकार एनो जे रणकार है एना स्थाने तोपोनी
અવાજ કરી દો, બરાબર. ભૂલ જાઓ રાગ રંગ, બરાબર, એ બધું ભૂલી જાઓ અને યાદ રખો હमें સ્વરાજ્ય લેના હે, હमें રણભૂમિ में मौत से जूझना है, બરાબર. એ બધું ભૂલી જાઓ અને એ યાદ રાખો કે અમે સ્વરાજ્ય લેના હે, પોતાનું રાજ્ય લેવાનું છે અને રણભૂમિ મેં મોત છે જૂझना હે, બરાબર, મોતથી બચવાનું છે રણભૂમિમાં, બરાબર. આગળ જોઈએ તાત્યા કહે છે महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, बराबर. કે તમારી જય થાઓ, વિજય થાઓ તમારો, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, मैं युद्ध માટે તૈયાર થઈને જ આવ્યો છું. लक्ष्मीबाई जानती हूँ कि हाँ हूँ के जानूँ छूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना, बराबर. लेकिन કે એ યાદ રાખજો કે જો દુર્ભાગ્ય છે વિજય ન મળે, બરાબર, કોઈ પણ કારણસર જો આપણને વિજય ન મળે, બરાબર, તો તમારે જે સેનાપતિ છે, જે સેના છે અને જે સામગ્રી છે એ બધી જ વસ્તુ દુશ્મનના ઘેરેથી નીકાળવાની રહેશે, બરાબર. તાત્યા બોલે છે એસા હી હોગા, બરાબર, એવું જ થશે, बराबर. अगर जो ये लक्ष्मीबाई बोले छे तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, बराबर. लक्ष्मीबाई कहे छे तात्या टोपे ने कि आ जे युद्ध छे ई मारा जीवनનું કેવું છેલ્લું આખરી અંતિમ युद्ध छे. जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, बराबर. जीत थाय कि हार थाय મને કોઈ વાતનું કાંઈ चिंता छे नहीं. चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए. મને चिंता એ વાતની છે કે જે આપણી વીરતા છે, બહાદુરી છે, એના ઉપર કલંક ન લાગે એની મને ચિંતા છે, બરાબર. તાત્યા કહે છે बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, बराबर. જે તમારી વીરતા છે, બહાદુરી છે, એને ધન્ય છે, એને ધન્ય છે, બરાબર. आपके रहते कलंक हमारी साया को भी नहीं छू सकेगा. आज्ञा दीजिए प्रणाम, बराबर. તમારા હોવા છતાં એને કલંક કાંઈ પણ એને ખરાબ થશે નહીં, એને કોઈ પણ छू नहीं सकता, बराबर, कोई भी छू नहीं सकता એટલે કે કોઈ પણ એને અડી ના શકે. આજ્ઞા દીજીએ, બરાબર, આજ્ઞા આપો એ કે પ્રણામ, પછી પ્રણામ કરીને એ જાય છે, બરાબર. આગળ જોઈએ લક્ષ્મીબાઈ प्रणाम तात्या, बराबर. लक्ष्मीबाई પછી કહે છે प्रणाम तात्या मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना. तात्या चल जाता है, बराबर. અને કહે છે કે હું સીધી યુદ્ધભૂમિની અંદર આવી જઈશ, તું વાર લગાડીશ નહીં, બરાબર. અને તાત્યા ચલા જતા, એટલે તાત્યા ટોપે છે જે છે, બરાબર, સેનાપતિ એ ત્યાંથી વયા જાય છે, બરાબર. મુંદર બોલે છે સરકાર આજ મેં બરાબર આપકે સાથ રહુંગી, બરાબર. જે મુંદર એની બહેનપણી છે, સખી છે, એ કહે છે કે સરકાર, બરાબર, આજ હું તમારી સાથે બરાબર રહીશ, बराबर. जूही बोले छे जूही और मैं तोपखाना संभालूंगी, बराबर. અને હું તોપખાનું છે, બરાબર, એ હું સંભાलूंगी, એટલે કે એ હું સંભાળીશ. લક્ષ્મીબાઈ બોલે છે और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, बराबर. આપણે બધા મળીને કાં તો સ્વરાજ્ય મેળવીશું અને કાં તો સ્વરાજ્ય કે नींव का पत्थर, એટલે કે જે પોતાનું રાજ્ય સ્થાપવાનું છે એ નહીં સ્થપાય, બરાબર. એનું પથ્થર એટલે કે એનું એક શું કહેવાય કે એનો એક આપણને અફસોસ રહી જશે. हर हर महादेव, बराबर. પછી તેનો हर हर महादेव का उद्घोष करती है, बराबर. પછી શું કહે છે हर हर महादेव એવો ત્રણેય એનો અવાજ કરે છે. પૃષ્ઠભૂમિ में यही उद्घोष ઉભકર આતા હે, બરાબર. યુદ્ધભૂમિ છે એમાં આ જે
અવાજ છે એ ઉભરાઈ આવે છે, જો મંચ પર પ્રકાશ કે ધૂંધલાતે ન ધૂંધલાતે સબ કહી જાતે, બરાબર. અને પછી યુદ્ધ થાય છે, બરાબર. યુદ્ધભૂમિની અંદર યુદ્ધ થાય છે, રેતીઓ ઉડે છે, બરાબર. અને રંગમંચ પર પ્રકાશ છે એ ધૂંધળો આછો થઈ જાય છે, બરાબર. અને શું થાય છે તો કે ધૂંધલાતે સબ કહી જાતે, બરાબર. પ્રકાશ ધૂંધળાઈ જાય છે અને પછી કોઈ આ બાજુ એ બાજુ, બરાબર, એ જાતે હે અને વયા જાય છે. ફિર ધીરે ધીરે શાંતિ જાને લગતી હે, બરાબર. પછી ધીરે ધીરે શાંતિ થવા લાગે છે, પ્રકાશ ઉભરને लगता है, बराबर. જે પ્રકાશ છે ये થોડો આવવા લાગે છે और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है, बराबर. અને જે પૃષ્ઠભૂમિ છે એમાં ગીતા પાઠ એનો સ્વર, બરાબર, એ ઉઠે છે. અને બરાબર આવી રીતે આપણો જે આ પાઠ છે, બરાબર, સ્વરાજ્ય કી નીવ, એમાં જે ઝાંસીની રાણી છે લક્ષ્મીબાઈ, બરાબર, એ કઈ રીતે જે કાંઈ પોતાના રાજ્યને મેળવવા માટે, બરાબર, કેવા પ્રયત્નો કરે છે, બરાબર, કોણ છે એમાં, બરાબર, જુહી છે, બરાબર, મુંદર છે, રઘુનાથ, તાત્યા છે, સેનાપતિ, આ બધા જે છે એને સાથ સહકાર આપે છે, બરાબર, પોતાના રાજ્યને મેળવવા માટે, બરાબર. સરસ મજાનો પાઠ છે મિત્રો, બરાબર. તો સરસ મજાનો બધાને સમજાઈ ગયો છે, બરાબર, એવી આશા રાખું છું. તો આપણે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 5 સ્વરાજ્ય કી નીવ એ અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ, બરાબર. અને હવે તમારે હોમવર્કમાં એક કામ રહે છે, આ પાઠના શબ્દાર્થ છે, સ્વાધ્યાય, અભ્યાસ જે કાંઈ છે એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે, બરાબર. હું જે હોમવર્કમાં વોટ્સએપમાં તો મૂકી જ દઈશું, બરાબર, પણ વિડીયોમાં પણ તમને કહી દઉં છું, બરાબર, એટલે ભૂલાય નહીં, બરાબર. એટલે તમારે આનો જે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ છે એ પણ કરી નાખવાનો છે અને ખાસ પાકું કરી લેવાનું છે, બરાબર. અને જે કાંઈ ન સમજાય તો તમારે અહીંયા સ્કૂલે આવો ત્યારે પણ પૂછી લેવાનું મને, બરાબર. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. અસ્તુ.